Assalamu alaikum. All right. Alaikum. Okay. Please let me know if you can hear me okay. Can somebody comment? Let me know that you can see me and you can hear me. Just type in yes if you can hear me okay. Type in yes, please, if you can hear me okay. Okay, beautiful. Awesome. Thank you. Sorry. Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillah rahman rahim. I'm so sorry I am late. I apologize. 25 minute late शुरू हो रहे हैं मैं actually I was busy with an interview which ran a little, actually almost an hour later than I thought it would run. So I apologize. आप लोग शायद जानते हैं कि मेरी जो main business है that is in America. So I routinely have to either give interviews or take interviews, and that is what was happening today. तो वो ज़रा लेट हो गया. I apologize. तो सबसे पहले तो ये कि आज मैं आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस कुछ आंसर करना चाहती हूँ रिगार्डिंग एनएलपी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. उसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए थे, वो एड्रेस करूँगी. इससे साथ साथ आपको 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स की भी अपडेट देना चाहती हूँ. ब्रीफली आई मेंशन, इस दफ़ा हमने बहुत स्ट्रेटिजिकली ये डिसाइड किया था कि आमतौर पे द कोर्स सेल्स आउट एट अबाउट 120-150 सीट्स. हम आमतौर पे 100 पे रोकना चाहते हैं, बट इट एंड्स अप बीइंग 120-150. I'm so busy this year कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं दोबारा ये कोर्स लाइव करा सकूंगी. तो मैंने अपनी टीम से यही कहा था कि I want to work with really committed people and I want to work with a smaller group of people. So the price is higher, but it's also because they are going to get way more attention from me, and we're not going to do it again this year. Maximum hamare goal hai not to go over 30 or 35 people. So I think we have only 5 more seats left, and then it will be closed. And course is starting April 1st. I'm super excited. This course has alhamdulillah transformed the lives of over 650 people already, and now that we're doing it in a smaller group, hopefully it's going to have even better results. And और अगर इस तरह से ये वाकई होता रहा तो that is how I'm going to do it in the future also with very small groups, ताकि actual transformation हो. और if you need information, you can message, you can comment. My team will be able to help you with that. तो और इसके बाद 30 days के बारे में अगर मज़ीद कुछ बातचीत करनी होगी तो I will do it in a little bit after I have addressed some of the concerns I saw on the video that I made on NLP, which is Neuro-Linguistic Programming, and the Law of Attraction. तो जाहिर है जो मेरी वीडियोस होती हैं वो छोटी होती हैं, राइट. सो दे आर सपोज टू बी अबाउट 5-7 minutes लॉन्ग मैक्सिमम. उसमें मैं उतनी ही बात कर सकती हूँ जितनी की 5-7 मिनट में आ सकती है. मैंने उसमें आपको कहा भी था कि मैंने आई हैव स्पेंट ओवर 15 क्लोज टू 18 years in the field of mind sciences, consciousness and self-development. And I have learned from some of the top teachers in these fields in the world, globally जो माने जाते हैं. उनमें से बहुत से लोग अगर आप गूगल करेंगे उनके इंटरव्यूज़ मेरे साथ आपको मिलेंगे. और कुछ के मैंने पोस्ट भी किए हैं, इस पेज पे भी किए हैं, बिकॉज दे आर ऑल इन इंग्लिश, तो वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते. बट अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको उनमें से कुछ इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे. बाकी भी मैं कोशिश कर रही हूँ to continue to post those on YouTube, even though they are in English, but they're very helpful. So you name it, I've done it. Okay. Frequency healing, the law of frequency, law of attraction, Reiki, energy healing, NLP, Silva method, Dr. Joe Dispenza. I mean, you name it. Ye chalte jayenge, and I will keep saying yes, 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 yes. Okay. I am also
one of the only people who created a very science-based docu-series on energy healing called Energy, the Ultimate Healer. आप उसको अगर Google करेंगे तो you can find out about it. But it's at energytheultimatehealer.com. I am the executive producer and the narrator. और उसमें हम बहुत ज़्यादा science-based evidence provide करते हैं regarding energy healing. It is not Islamic at all. However, if you are familiar with Islam and spirituality, you will be able to understand that many of the concepts are actually quite evident through Islam also. But this docu-series was made for general Western public. तो उसमें भी आप देख सकते हैं how the different energy healers work. So I know this field really, really well. And with all due respect, पाकिस्तान में I know NLP और law of attraction इस वक्त बहुत लोगों को उसके बारे में जोश आया हुआ है. ये कोई पाकिस्तान में नई ही दरियाफ्त है, लेकिन ये अमेरिका में बहुत पुरानी हो चुकी है. Law of attraction जो था, it started with the it had kind of been around, लेकिन ये जो as a phenomena it exploded after Rhonda Byrne. Yeah, Marie Forleo has been on my show too. Not Marie Forleo, I'm sorry. She's more of an internet marketer. So not Marie Forleo. But I know who you're talking about. She's great. She's a great teacher, but for entrepreneurs. तो मैं distract हो जाती हूँ comments को देख के, sorry. So Rhonda Byrne she was an investigative journalist, and she wrote this book called The Secret. और The Secret जो थी वो, it is a brilliant marketing idea, how she marketed this concept that had been around for many, many decades. Basically, ये Napoleon Hill की book थी, Think and Grow Rich, which is supposed to be just this Bible for people who are entrepreneurs. And I personally, again, I think work of the devil. Sorry, but that's what I think. एक ज़माने में मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन थी उस बुक की और नेपोलियन हिल के काम की. बट आप अगर बुक पढ़ेंगे तो जिन लोगों को उसने फॉलो करके वो बुक लिखी है, not exactly people that you want to follow. ये सारा कैपिटलिस्टिक जो फ्लेवर है ये आया ही वहीं से, उन्हीं लोगों से है. तो रॉकफेलर एंड पीपल लाइक दैट. सो इन खातून ने क्या किया कि इन्होंने यूं किया कि कुछ जो टॉप के स्पीकर्स थे उस ज़माने में, जो टीचर्स थे उस ज़माने में, अमेरिका में भी सेल्फ डेवलपमेंट का काम कोई बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं था. इंटरनेट का भी नया नया ही हुआ था या भी हुआ ही नहीं था. आई रिमेंबर, तो बहुत कम लोग थे. इंटरनेट था लेकिन अभी बड़ा कम था. सो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वर वेल नोन in this space on the internet, but they were well-known teachers. They had written many books, and ये खातून जो थी, ये she took a coaching course on how to become a best-selling author from a man named Chris Atwood, who was himself a New York Times best-selling author of a couple of books, and he was coaching this course, and he loved her idea जो ये जिस concept पे ये लिखना चाह रही थी, and he was the one who introduced her to all the speakers and the experts that appeared in her book. So I believe she released the video first and then she released the book, and these speakers were introduced all by Chris Atwood. They were his personal friends. Chris Atwood has been my personal mentor for 10 years. He's a wonderful man, amazing. Uski interviews मेरे channel पे, YouTube के channel पे हैं. So what happened was that the way Rhonda Byrne portrayed The Secret, in which she basically, The Secret is basically the law of attraction. पर आधी वीडियो आप यही देखने में लगा देते हैं कि there is some big secret जिसकी वजह से you can become a master of your universe, you can manifest, you can do this, you can do that, and if you can manifest, then why do we need God, basically, right? You can if you want a certain car, you start visualizing it. तो आधी बुक तो वो आपको सिर्फ हाइप बिल्ड करने में लगाते हैं, आधी वीडियो, और उसके बाद फिर वो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन देते हैं कि जी ये है सीक्रेट और इसको इस तरह से करना है कि you basically, if you have a dream or a desire, you visualize, you focus, and it's gonna show up in your life. लोग vision boards बनाते हैं, उसकी pictures बना के, ये वो सब कुछ किया हुआ है मैंने. Been there, done that. Now here's the problem. देखने में कोई बुरी बात नहीं है, because we do know
कि where the energy goes focus grows, मैं खुद भी यही कहती हूँ, focus grows wherever your energy goes. अगर आप एक चीज़ की तरफ focused हैं, positive thinking की तरफ focused हैं, gratitude की तरफ focused हैं, इन चीज़ों की तरफ focused हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद इम्प्रूव होना शुरू होगी, there is no doubt. तो मसला ये होता है कि ये तमाम चीज़ें देखिए, याद रखें, शैतान के बारे में बड़ी अक्लमंदी से हमें सोचना होता है कि शैतान ये करता है कि ये आपको अगर आप तंग आ गए अली हाशमी साहब मेरा लाइव देखते देखते, तो आप साइन ऑफ कर दें। आपसे किसने कहा है कि आप ज़रूर मेरी लाइव वीडियो देखें? दैट इज़ हिलेरियस। तंग आ गए तो आप ना आए भाई, आप साइन ऑफ करें। एनीवे, तो लेट मी जस्ट टर्न दिस ओवर सो आई डोंट सी इट, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि ऑल दीज माइंड साइंसेस, जो मैं अपनी हर टॉक में कहती हूँ, मैं अपने कोचिंग कोर्स में भी यही बात कहती हूँ, all these mind sciences, because I was in this field, I wanted to learn, and I've said to you guys many times कि मेरी relationship उस वक़्त अल्लाह ताला से कोई इतनी अच्छी नहीं थी, right? मैं बागी हुई हुई थी इस्लाम से, तो मैं यही सोची थी मैं ये सीख लूँगी, मैं ये कर लूँगी, I will manifest freedom, I will manifest money, I will manifest this, that and the other, and all these things will take you so far, and then they will stop. This is the key, this is the secret, because I have gone with these things really to their nth degree. और मेरी ज़िंदगी का एक असूल है कि मैंने जब कुछ सीखना होता है तो मैं उस फील्ड के टॉप के बंदे से सीखती हूँ जाके, अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, जिसको भी टॉप के बंदे को अफोर्ड कर सकती हूँ, आई गो एंड लर्न फ्रॉम देम. आई हैव स्पेंट ओवर $1 million on my own education, and I'm not saying this to make anybody feel bad or show off, but I'm telling you this to show my commitment कि मैं I was committed to learning whatever I could learn about mind sciences, spirituality and how to live a balanced life, etc. etc. तो शैतान ये करता है कि शैतान आपको एक चीज को, वो सच को, थोड़े से सच को लेके झूठ के साथ मिक्स करता है. याद रखें, वो पूरा झूठ नहीं आपको फीड करता, बिकॉज फॉर इंटेलिजेंट पीपल दे वोंट बाय इट. सो इट मेक्स समथिंग वेरी अट्रैक्टिव बाय मिक्सिंग ट्रूथ विद लाइज. दैट्स द थिंग, एंड दैट इज व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड. बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने देखा कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, यार हिट और मिस, आपने 10 चीज़ों के ऊपर बैठ के मैनिफेस्टेशन की एक्सरसाइजेस की, एक दो मैनिफेस्ट हो भी जाएंगी, इतनी कोई अचंभे की बात तो नहीं है, हो भी जाती हैं. और ख़ास तौर पे बिकॉज दे स्टार्टेड प्रीचिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड बिकॉज इट रेजेस योर फ्रीक्वेंसी. ग्रैटिट्यूड तो हमें भी कहा गया, लेकिन हमारे यहाँ ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है. हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं. एक तो ये कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, और हमें इजाज़त नहीं है कि हम नाशुक्री करें जब हमारे ऊपर मुसीबत आए. हम हर हाल में शुक्र ही अदा करते हैं, और हम रब की रबूबियत को मान के, उसके अपने आप को उसका स्लेव समझ के, तो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं. सो फ्रीक्वेंसी तो आपकी रेज होगी. मुझे आई नो अ लॉट अबाउट लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई टीच इट ऑल्सो. फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेटली रेज होगी, लेकिन कई दफ़ा आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकेंगे चीज़ें. देखिए, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और NLP ज़रूर काम करते, हर हाल में काम करते, तो दुनिया में तो क्यास होता. क्योंकि कुछ पागल लोगों ने मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी है कि अमेरिका तबाह हो जाए, पाकिस्तान तबाह हो जाए, इंडिया तबाह हो जाए, व्हाटएवर. इस तरह की मैनिफेस्टेशन की भी लोग, तरह तरह की, मैं आपको बड़े एग्जांपल्स दे रही हूँ. अगर हर एक की मैनिफेस्टेशन जस्ट बिकॉज दे हैव दिस पावर ऑफ फोकस एंड दे रेजिंग द फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, देन the world would be in chaos. So majority of these people, they keep buying courses. So that's another secret कि ये ऐसे coaches के साथ ये बार बार, or you're not doing something right, so you need to buy more, another course, you need to buy another course. And the truth of the matter is, you are never going to get to the point where you can you become a master manifester. You're not going to get there. ये है ही नहीं. ये बात समझ लें. कंट्रोल रब के हाथ में है, होता वो है जो तकदीर में लिखा हुआ है वही मिलता है, और रब की तरफ से सिर्फ खैर आती है. ये मैं बार बार आपको बात कहती हूँ. लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड NLP आर टेक्निक्स फ्रॉम द डेविल. आई कीप सेइंग दैट बिकॉज दे टेक गॉड आउट ऑफ द इक्वेशन. अमेरिका में, और मैं ये गोरों को जब समझाती हूँ ना, मेरी यही क्लासेस गोरों के साथ भी हुई थी, आई वॉज सरप्राइज कि कितने लोगों ने, पाकिस्तानी लोगों ने
मुसलमान होके मेरी बात को इसको क्वेश्चन किया है, जबकि मैंने अपना जो मेरा प्लेटफॉर्म है 10-15 साल पुराना, उस पर जब मैंने ये खुल के बात की थी, एक बंदे ने भी मुझे रिफ्यूट नहीं किया था जब मैंने ये बात कही कि why has been spirit taken out of spirituality? We are told we are masters of our own destinies, we manifest this, we manifest that. It has taught us to stop praying to God, to stop depending on God, to stop trusting God. So जब आपके failures होना शुरू होते हैं, जो कि होंगे, आप अपनी तरफ से बड़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखे, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ रेजोनेंस, लॉ ऑफ दिस, लॉ ऑफ दैट करके आप बैठेंगे और फिर भी वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं, खास तौर पे व्हेन इट कम्स टू controlling other people's behaviors, right? Oh, I want my husband to improve, I want my wife to love me, whatever. वो तो होता ही नहीं है, उसमें तो फ्री विल बंदे की इन्वॉल्व है, वो तो आप करते रहें, देखें, वो नहीं हो सकता। काम सिर्फ अपने ऊपर बंदा कर सकता है, दूसरे बंदे पे आप दूसरे बंदे को चेंज नहीं कर सकते। तो जब ये फेलियर्स आना शुरू होते हैं, व्हाट हैपेंस इज दैट subconsciously you start to see yourself as broken, as a failure, because you see all those success stories कि I manifested this, I manifested my dream house, I manifested my dream car, I did this, I did that, and then inside you feel like मैं तो ये भी ठीक नहीं कर सकता, मुझसे तो ये भी ठीक नहीं होता, so something is wrong with me, and then you feel this burden, something goes wrong in your life and you're like, oh, I have to raise my frequency, I have to do this, I have to do that. It's all about ego and control, and eventually you become very stress ridden, and you have anxiety. I personally know people that teach the law of attraction at a global level, that is their income, and I know कि उनकी जिंदगी कितनी बदहाल है इस वक्त। ये अब बातें आपको behind the scenes तो नहीं पता चलती ना, आप तो सिर्फ उनको online देखते हैं, they're driving, they're riding in their helicopter, they're making a call from their Bentley or whatever, but you don't get to see what happens behind the scene. I do get to see it because I am behind the scenes. I've interviewed many of them. So मैं इस वजह से आपको कह रही हूँ कि beware। मैं पाकिस्तानियों को इसलिए कॉशन करना चाहती थी क्योंकि मैंने देखा बहुत से कोचेस वगैरह अब बहुत उन्होंने अब डिस्कवर किया है सीक्रेट को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और उसको बहुत प्रमोट करें, विच वॉज शॉकिंग टू मी कि मुसलमान होके मैं तो उस वक्त बागी थी, ये तो बागी भी नहीं है। वाई आर दे गेटिंग कॉन्ड इनटू दिस? इट्स अ कॉन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ कॉन। इफ यू आस्क मी कि ये बाकी चीज़ें, ग्रेटिट्यूड इज़ अ वंडरफुल थिंग, ज़रूर करें। अल्लाह ने खुद फरमाया कि शुक्र करने का फ़ायदा ये है कि फिर अल्लाह मज़ीद नेमतें भेजता है जिनका आप शुक्राना अदा करें। येस, दैट इज़ ट्रू। वही बात है ना कि इसको वो शैतान लेके ट्विस्ट करके तो उसमें झूठ मिक्स करके आपको मिसगाइड कर देता है। अल्लाह के बगैर आपने ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, आप जिंदगी में अपनी बेहतरी चाहते हैं, क्विक थिंग्स, क्विकली आई टेल यू। नंबर 1, सबमिट कंप्लीटली। ये बात समझ जाएं कि रब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपकी जिंदगी में आपकी हर प्रॉब्लम, हर खुशी, हर नेमत, हर चैलेंज, सब वो जानता है। उसी की वजह से, उसी की मर्जी, उसकी रजा से आ रहा है। हमारा काम है ये सीखना कि हम रब की मर्जी के आगे किस तरह अपने आप को हर हाल में सबमिटेड रखें। मालिक तेरी मर्जी तो मेरी मर्जी, बस। हाँ, मेरी ये दुआएं हैं, या अल्लाह मैं तुझसे ये चाहती हूँ, मैं तुझसे ये मांगती हूँ। मांगे, वो उसको पसंद है, मांगे। कुछ दुआएं कबूल होंगी, कुछ वो आपके लिए बेहतर नहीं समझेगा, नहीं देगा, या उस वक्त टाइम बेहतर नहीं है आपके लिए, उस दुआ की जगह कुछ और दे देगा। कबूल हर हाल में वो करता है, हर हाल में। मे बी उस शक्ल में कबूल ना करे जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और ये दूसरी चीज, पॉइंट नंबर 2, रब की तरफ से सिर्फ खैर आती है, बस इस पे डट जाए। रब की तरफ से सिर्फ खैर आती है। फिर देखें जिंदगी कैसे यूं 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 आपकी एक्सपेक्टेशन जो आप विजुलाइज करें उससे कहीं बेहतर निकलेगी, लेकिन आपके दिल में सुकून भी होगा, आपके दिल में ईमान भी होगा, और आपके दिल में एक ये ट्रस्ट होगा कि मैं, आई एम नॉट अलोन, मेरे कंधों पे ये सारा बोझ नहीं है, ये तो रब के कंधों पे, उसी पे होना चाहिए, वो ही उठा सकता है। उसने कब कहा था कि बंदे जाके दुनिया में अपनी जाके ना तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लड़ा। सो मैं आपको फिर ये एक शॉर्टर वर्जन में बता रही हूँ, इसके ऊपर मैं पूरा दिन बात कर सकती हूँ। आई कैन रिफ्यूट दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन BS ऑल डे लॉन्ग। मैं इसको जहाद समझ के करूंगी अगर करना पड़ा। प्लीज डोंट बाय इनटू दैट। सिंपल जो चीजें हैं वो करें। रब सिंप्लिसिटी में आपको मिलेगा। 2-3 चीजें मैंने आपको अभी बता दी हैं।
एक दो और चीज़ें हैं, तौहीद को पकड़ लें, जो मेरी वीडियोज़ हैं कुछ तौहीद के ऊपर, कि समझ जाएं कि रब की ज़ात और उसके एट्रीब्यूट्स में किसी को आपने अगर इंक्लूड किया तो यू विल फेस मिजरी. सो इफ़ देर इज़ मिजरी इन योर लाइफ तो इसकी ज़रा बैक ट्रैकिंग करें, रिवर्स इंजीनियरिंग करें और देखें कि ज़िंदगी में कहाँ पे तौहीद में गड़बड़ हो रही है. जब आपने वो नुक्ता पकड़ लिया, इंशाल्लाह आपकी मिजरी भी ख़त्म हो जाएगी. रंज, तकलीफ़, बाबा ये तो नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है. रंज आएगा, ये हो नहीं सकता कि ना. अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले आपको ये भी सिखाते हैं. इसकी मोस्ट प्रोमिनेंट टीचर वाज एस्टर हिक्स, राइट. Esther Hicks was her husband Jerry, and Esther led many seminars before even The Secret came out. उसके बाद भी उन्होंने बहुत किया. Abraham Hicks, वो ये कहते थे कि Esther could channel from this some benevolent beings. अब वो benevolent beings क्या हैं हमें नहीं पता, जिन्नात हैं क्या हैं, आई डोंट नो, बट वो चैनलाइज स्टेट में आ जाती थी. उसके बाद लोग उससे बातें जब करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, तो जो जवाब उसके मुंह से निकलते थे वो कहती थी, नाउ सिंस आई एम अ चैनल दे आर आंसरिंग यू. ब्रिलियंट बातें, बहुत इंटेलेक्चुअली हाई थी. अभी भी अगर आप गूगल करेंगे कभी, एस्टर हिक्स, ESTHER हिक्स, HICKS. So Abraham Hicks was this collective of consciousness of some extraterrestrials or whatever, higher consciousness, she said. और वो उनको चैनलाइज करके तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती थी. अब उसका मियाँ जेरी हिक्स मर गया, फौत हो गया, तो उसके बाद से वो बहुत अब इतनी नज़र नहीं आती, बट उससे पहले बहुत द वॉर्टेक्स एंड ऑल दोज थिंग्स यूज, सब कुछ मैंने भी किया. फिर बड़े फैसिनेटेड होती थी, बड़ा कुछ शौक से कि अच्छा इसमें आदत है मेरी कि एक चीज़ में जाती हूँ तो घुस जाती हूँ. फिर जब मैं खुद अपनी आंखों से उसकी फेलियर्स देखती हूँ और उसके अंदर का ईवल जब मैं देख लेती हूँ, फिर मैं पीछे हट जाती हूँ कि नहीं यार ये नहीं करना, नो वे. सो अपनी रिसर्च करें, करके देख लें. और अगर जिसको शौक है कि नहीं इरम ऐसे ही, इरम को क्या पता बकवास करिए, शी डजंट नो एनीथिंग, देन गो अहेड, बी माय गेस्ट, ट्राई इट. And then after a few years when you come to the same conclusions, if you do, let me know. क्योंकि मैंने तो ये सारी खाकें छान के, तो मैं अब बातें सिखाती हूँ, मैं जानबूझ के ये और किसी टेक्निक का जिक्र नहीं करती. मेरे 30 डेज कोर्स में कुछ मैं माइंड साइंसेस की टेक्निक्स यूज़ करती हूँ, विच आई हैव फाउंड इन ऑल दीज ईयर्स टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल. एंड उसमें बेसिकली यू हैव टू लर्न हाउ टू थिंक अबाउट योर थिंकिंग. कि मैं अपने ये जो मेरा ब्रेन है जो हर वक्त चलता रहता है ऑटो पायलट पे और मैं रिएक्ट करती रहती हूँ हर वक्त, ये सोचता क्या है, ये क्यों ऐसे सोचता है, एंड इज देयर एनी वे आई कैन चेंज दिस थिंकिंग. इट्स वेरी डिफरेंट. वी डोंट डू एनी एंकरिंग और एनी ऑफ दैट स्टफ. मैं हिप्नोसिस की कोई टेक्निक नहीं आपको सिखाती, ऑल्दो आई डोंट माइंड हिप्नोसिस इफ यू नो if the hypnotherapist is a good one and is in integrity. Hypnosis is very useful, but एक तो एनर्जी हीलिंग की टेक्निक्स मैं अपने कोर्स में सिखाती हूँ. अगेन वन ऑफ देम इज इस्लामिक, द अदर वन इज कॉल्ड EFT. इट इज़ एनीवेयर, इट इज़ फ्री. आप गूगल कर लें उसको, यूट्यूब पे कर लें, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. वो मैं अपने कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करनी सिखाती हूँ. आई हैव यूज्ड इट विद वुमेन हु वर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. उसके ऊपर बहुत दुनिया में रिसर्च हुई हुई है. अफ्रीका में जिन लोगों के बच्चे उनके सामने ज़िबा कर दिए जाते थे, या जिनकी माएँ बाप उनके सामने ज़िबा कर दिए जाते थे, टू हील देम फ्रॉम PTSD एंड स्टफ, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इज़ यूज्ड. इट्स अ वेरी साइंटिफिक बेस्ड. अगर आपने कभी व्हाट इज़ इट कॉल्ड दैट, मेरे दिमाग से इस वक्त नाम, एक्यूपंक्चर, जो चाइनीज़ एंशंट चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है जिसमें वो डिफरेंट बॉडी के मेरिडियंस के ऊपर सुइयाँ लगाते हैं टू बेसिकली रिलीज द ब्लॉक्ड एनर्जी. तो EFT is basically on that same concept that it works on energy meridians. तो ये तो थी मेरा. इसके अलावा मैंने बहुत सी टेक्निक्स देखी हैं. इन माई मैनी ईयर्स इन दिस फील्ड देयर वाज समथिंग कॉल्ड एक्सेस कॉन्शियसनेस. जितनी तेज़ी से वो काम करती थी उतनी तेज़ी से मैंने कोई टेक्निक इतनी तेज़ी से काम करते हुए नहीं देखी. थैंक गॉड दैट इट्स नॉट अवेलेबल एनी मोर ईजिली, बट इट वॉज टोटली रूटेड इन ईवल. पता नहीं था शुरू में लोगों को. इट सीम्ड सो गुड, इतनी अच्छी बातें थी, यू नो, ह्यूमन राइट्स की, एंड यू हैव अ राइट टू बी हैप्पी, यू हैव अ राइट टू बी द किंग ऑफ योर यूनिवर्स और क्वीन ऑफ योर यूनिवर्स, एंड ब्ला ब्ला दिस एंड ब्ला ब्ला दैट, एंड देन अ लॉट ऑफ
न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ केम आउट कि इनके जो प्रैक्टिशनर्स थे जो देवर चाइल्ड अब्यूज़र्स, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़र्स एंड ऑल दोज थिंग्स, और उसके बाद इसका डाउनहिल का वो शुरू हुआ, अनदर ईवल टेक्निक। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में जो वेस्ट की तरफ से निकल के आती हैं, फिर उनकी पहले वो बड़ी पॉपुलर होती हैं, फिर उनका वो डाउनफॉल शुरू होता है। तो बी केयरफुल। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मुझे मालूम था कि लोग करेंगे एतराज़, क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मैंने देखी है, क्योंकि पाकिस्तान में पर्सनल ट्रेनर, ये कोच बनने का बहुत एक ट्रेंड है इस वक्त। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हर कोई अपने आर्सेनल में रखता है और वो उसको यूज़ करते हैं। नाउ अगर आप सरफेस लेवल पे देखेंगे तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीम्स harmless and sometimes useful, right? By the way, a lot of marketers in America use neuro-linguistic programming. Tony Robbins uses wo jo anchoring techniques hai, he uses those. I consider it to be mind control, and like I said, मैंने कोई किसी ने लिखा कि 2 लोगों के साथ आपका बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो आपने एक पूरे के पूरे साइंस को जनरलाइज करके तो बैड कह दिया। भाई 2 लोग जो थे ना, वो 2 लोग, उनकी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो 2 लोग, they were the two that trained master NLP trainers in America. They were the trainers of the trainers. ये 4-5 ही होते हैं अमेरिका में, इससे ज़्यादा नहीं होते। So एक आप ऑर्गेनाइजेशन के हेड की बात कर रहे हैं, उनमें से 2 लोगों की आपने असलियत देखी है, जो कि पिछले 30-40 साल से NLP प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो खुद ड्रग एडिक्ट्स हैं और झूठे हैं और चोर हैं। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में एक अक्लमंद शख्स को इससे ज़्यादा इशारा नहीं चाहिए। आपको नज़र आ रहा है कि ये बोतल जो है, इसमें किसी ने 2 कतरे पॉइजन के फेंक दिए हैं, तो मैं तो इस बोतल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अब अगर आपको शौक है कि हाँ हो सकता है वो 2 कतरे नीचे जाके बैठ गए हों और बाकी पानी अभी भी साफ हो, वो फिर आपकी मर्जी, आप करें, मैं तो नहीं करती। दूसरा ये, ज़रा रिसर्च करें ना NLP पे, थोड़ी सी ज़रा रिसर्च करें कि NLP एंड साइंटोलॉजी, द चर्च ऑफ साइंटोलॉजी, इनमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि ये भी वही जो क्या है, वो मैक्स हबर्ड, क्या नाम था उसका, वो टेक्निक्स उसकी और NLP की टेक्निक्स आर वेरी सिमिलर। ये जो एंकरिंग टेक्निक है, ये उनकी आई थिंक एनियोग्राम या समथिंग, दैट्स व्हाट दे कॉल इट। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी सिमिलर बट विद डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। एंड साइंटोलॉजी ने माइंड कंट्रोल करके, आपको पता ही है दैट चर्च ऑफ साइंटोलॉजी हैज डिस्ट्रॉयड सम पीपल्स लाइव्स, और काफ़ी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ उसको बिलोंग करते हैं। पीपल कंसिडर इट अ कल्ट। एक बड़ी फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसने अपना लाइफ मिशन बनाया हुआ है कि वो इनकी इन टेक्निक्स को और उसको वो एक्सपोज करे। वो खुद चर्च ऑफ साइंटोलॉजी में थी, वो खुद एक ट्रेनर थी, कोच थी, और उसके बाद उसने शी ब्रोक फ्री एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग ओपनली अबाउट इट कि हाउ डेंजरस इट इज़। तो इस वजह से I don't like neuro-linguistic programming either. I have not seen long-term benefits from it, although some people wrote they have. Okay, good for you. कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि हम न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को इस्लामिक स्पिरिचुअल टेक्निक्स के साथ मिला के यूज़ करते हैं, and it is very useful. That's your choice. I would still not. मैं फिर भी नहीं करूँगी. But that's my choice, right? That's my choice. If you are conscious about Islamic principles and you are applying NLP there, okay, up to you. मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मुझे एक चीज़ की समझ आ गई है कि ये जो सोर्स है, ये सोर्स ठीक नहीं है। देखिए, मेरी ज़िंदगी में एक असूल है कि अगर आपने एक बीज के बारे में डिटर्मिन करना है कि is this seed any good, look at the fruit of that tree. That's how I determine. If the fruit of the tree is poisonous, then I will not go near the seed. Simple as that. So ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी regarding why I spoke up against law of attraction and NLP, because both these techniques have, in America, the spiritual community does not believe in God anymore. They believe in these techniques, they believe in manifestation, they believe in कि मेरी frequency high होगी तो फिर the universe will be forced to send you what you desire. These are words that they use a lot, and you guys know it. That if you raise your frequency, the universe will have no choice but to send you what you desire. क्या बातें कर रहे हो? अल्लाह के पास choice नहीं है. Whatever.
So it's just, it sounds really good, but it sounds really good for people that want to have control in their lives. I'm not saying they are bad people. It could be because you are going through such a hardship, आपके पास एक चीज खराब हुई है, and you want to have some semblance of control in your life, right? That's why I did it. कि ये क्या बकवास, one cycle of destruction after another. I need to learn how to be able to how to remain in control in my life. So I that's what I did. That's why I did all these things. और फिर मेरी जो वो वीडियो है जब मैं हज पे गई, तो वहां पे मुझे समझ आई कि ये सब तो मेरे पाँव की चेन्स बन चुके हैं. They are holding me back. In order to have freedom, I have to be a slave of Allah. I have to submit completely, and then I will be liberated. Because अब मुझे manifestation का कोई गम नहीं है कि होता है वो नहीं होता. रब की मर्जी है यार, दुनिया में manifestation करने के लिए तो नहीं आए हैं ना. दुनिया में किस पर्पस के लिए भेजा है अल्लाह ने कि मुझे जानो, मेरी इबादत करो, ये पर्पस उसने साफ बता दिया. अब ये जर्नी सारी उम्र की जर्नी है. अब अगर आपने मैनिफेस्टेशन के चक्कर में पड़ गए तो मेरी तरह काफी साल जाया करेंगे. चले कर लें, अगर इसी तरह आपने सीखना है तो दैट्स योर जर्नी. आई एम नो वन टू स्टॉप यू फ्रॉम इट. और एक और चीज कहती चलूं, प्लीज याद रखें ये बात, कभी किसी टीचर को, गुरु को, किसी को भी उस पेडेस्टल पे ना बिठाएं कि आप उनको परफेक्ट समझने लग जाएं. अपने लिए तो मैं बार बार कहती हूँ, भाई मुझे तो ना टीचर को ना गुरु को, मैं तो आप ही जैसी एक बंदी हूँ जो अपनी जिंदगी से कुछ सबक सीखी और वो शेयर करने आ जाती है. ना मैं अकले कुल हूँ. आई कुड बी टोटली रॉन्ग ऑल्सो. रिसर्च इट प्लीज. Don't ever think that anybody is perfect, because nobody is, and I am certainly not perfect. I'm full of flaws. So ये जो हम गलती करते हैं कि किसी को पेडेस्टल पे बिठा के कि अब जो ये बातें ये शख्स कह रहा है बस ये बिल्कुल सही ही होंगी. never ever do that. Question, learn to question. ये नबियों की सुन्नत है. Question. All right, so some questions. As you said in your last live that you can't suggest anything by only knowing small part of story of one person. In this course, will I be able to share my whole story with you? So that's interesting because it's a group course. Okay, you are in a group setting. और ये कोर्स साइकोलॉजिस्ट भी लेते हैं, साइकाइट्रिस्ट भी लेते हैं, PhD डॉक्टर्स भी लेती हैं, मेडिकल डॉक्टर्स भी लेते हैं, सेलिब्रिटीज भी लेते हैं. मेरे हर 30 डेज कोर्स में कम से कम 2 सेलिब्रिटीज होते हैं. बट यू गाइज डोंट नो इट बिकॉज वी गिव परमिशन के जब आप जूम की कॉल्स में आए या जब आप हमारा फेसबुक ग्रुप है वो ज्वाइन करेंगे तो यूज फिक्टिशियस नेम्स. बिकॉज कुछ लोगों के फैमिली मेंबर्स भी कोर्स ले रहे होते हैं एंड दे डोंट वांट द अदर पीपल टू नो, तो वो they use fictitious names. So that's number one. So we really protect your privacy. Only we know who you are. Nobody else knows. And we don't share that information. अच्छा, उसके बाद आपको अपनी whole story share करने की शायद ज़रूरत पेश आए ही ना. ये फ़ायदा होता है ग्रुप सेटिंग में एक क्लास लेने का, because even though I will do the live classes, कभी कभार मैं आई डू टेक 1-on-1. किसी को हम सिलेक्ट करते हैं, आपको अप्लाई करना पड़ता है एंड माई टीम सिलेक्ट्स द पर्सन हु आई एम गोइंग टू डू द 1-on-1 विद बेस्ड ऑन के पूरे ग्रुप को किस कॉलर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा. कुछ लोग वही राम कहानी, मेरी सास मेरे पर जुल्म करती है, मेरा हस्बैंड मेरे पर जुल्म करता है, मेरा ये, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ दिस कोर्स. अगर आपको कोई हमदर्द चाहिए जो आपका दुख सुन सके तो पैसे ना ज़ाया करें. दिस इज़ नॉट द पर्पस. द पर्पस ऑफ द कोर्स इज़ कि आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना सीख लें. आप ये देख लें, क्योंकि जो भी इस कोर्स में आया उस एक के बाद एक आपको ट्रॉमेटिक स्टोरी मिलेगी, फुल ऑफ ट्रॉमा. आप समझ रहे होंगे कि मैं शायद माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट ट्रॉमेटिक, एंड देन यू विल हेयर स्टोरीज फ्रॉम पीपल that are going to be even more traumatic than yours. तो जाहिर है वही लोग कोर्स लेते हैं जिनको कोई बहुत सख्त तकलीफ है या ट्रॉमा है. तो मुझे सुनाने से you want my हमदर्दी, I get it, but you already have it, even if I don't know you. मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह आपकी तकलीफ को दूर करे. मुझे आपकी तकलीफ सुन के तकलीफ भी होती है, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या फायदा होगा बाय टेलिंग मी योर होल स्टोरी.
what benefit are you going to get? I want you to be able to transform your life. तो मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करती हूँ जिससे आप खुद अपनी इस तकलीफ को हील कर सकें और आप जिंदगी में आगे एक पावरफुल तरीके से मूव कर सकें, ताकि अल्लाह ने जो आपको जिस पर्पस के लिए बनाया है आप वो पूरा कर सकें, राइट? सो इसमें मैं माइंड साइंसेस जो मेरी नज़र में बेस्ट है, आफ्टर हैविंग dealt with hundreds of different mind sciences techniques and meditation techniques and all of that stuff, I have selected only a few that I know work very well and they work quickly. And और ये बड़े बतदरीज तरीके से, देखें मेरी उर्दू कितनी अच्छी है, nobody can blame me now कि उर्दू अच्छी नहीं बोलती, बतदरीज तरीके से ये कोर्स बढ़ता है. पहले वीक it builds on itself, right? First week you're given something and it's all done very intentionally. आपको बताया भी नहीं जाता कि आपको ये homework क्यों दिया जा रहा है. Once you are done with the homework, then when we debrief, then you are told कि आपको ये homework क्यों दिया गया था. You are not allowed to go to the next session until you have done the homework. I'm very strict about it. Because मुझे शौक नहीं है कि लोग पैसे देके तो मेरे कोर्स में आ जाएं और वीडियो देखें और फिर कोई चेंज ना आए. I want to see people's lives transform. This is my passion. मेरी रूह को भी तो कोई एनर्जी चाहिए ना. अगर मैं ये इतना बोलती हूँ, बातें करती हूँ, जैसे कि ये शख्स अभी साहब कह रहे थे कि आप हर वक्त लाइव करने आ जाती हैं, हम थक गए हैं, तो मैं भी तो थक जाती हूँ. मुझे भी तो एनर्जी चाहिए. मुझे एनर्जी मिलती है जब मैं किसी की जिंदगी में चेंज देखती हूँ पॉजिटिव, खास तौर पे इफ दे ट्रांसफॉर्म. उससे मेरी रूह, मैं आपको बयान नहीं कर सकती. खास तौर पे, खास, I'll be very honest with you, मुझे खुशी होती है जब किसी की मैरिज इंप्रूव होती है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं, और ये सब कुछ इस कोर्स में होता है अल्हम्दुलिल्लाह. ये सब कुछ होता है. कुछ लोगों की पूरी 180 डिग्री जिंदगी चेंज हो जाती है और मुझे खुशी होती है. अल्लाह की बहुत ब्लेसिंग है. इट्स नॉट मी, इट्स अल्लाह ताला हु गिव्स द रिजल्ट्स. ऑनेस्टली मैं आपसे सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, मैं नहीं ट्रांसफॉर्म करती. लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी होती है, सबसे ज्यादा, which makes my soul sing, is when somebody tells me that my connection with Allah Ta'ala became deeper. That makes me cry, that, you know, tears of joy, because ये मेरे महबूब के साथ मेरा ताल्लुक है, राइट? कि मैं अपने महबूब के महबूब को उससे मिला रही हूँ. अल्लाह का महबूब उसका बंदा है, हर बंदा उसका महबूब है. तो कोई भटका हुआ, कोई गुमशुदा, कोई दुखी इंसान अल्लाह से जुड़ जाए तो वो मुझे मालूम है कि फिर उसका अजर जो वो है ना, वो मुझे मेरे रब से, वो उसका और मेरा मामला है. तो मैं एक लेजी बंदा हूँ, इबादत गुजार इतनी नहीं हूँ, तो मैं कमीशन पे चलने वाला बंदा हूँ. मुझे अल्लाह ताला इसका मुझे मालूम है कि ये फिर रब से अगर मैंने उसका एक बंदा भी जुड़ने में मदद की बिकॉज ऑफ समथिंग आई शेयर्ड, बस दैट्स इट, यू नो, दैट इज गोइंग टू बी दैट, मुझे वो चीज़ पार लगा देगी बस. और मैंने अल्लाह ताला से ये किया हुआ है कि अल्लाह ताला, मेरे पास काउंट नहीं है, क्योंकि कुछ लोग वीडियोस देख के शिफ्ट होते हैं, दे डोंट इवन मैसेज मी, ना मैं काउंट करती हूँ. बट अल्लाह ताला आपके पास काउंट है, आप काउंट रखें. मैं इसीलिए ये कर रही हूँ. और obviously I am an entrepreneur, so it's a business. I'm going to charge money for it too, although there are a lot of free videos as well. But ये है मेरी असल जो मुझे जिससे खुशी होती है. और जब ये कहते हैं लोग, और ज़्यादातर लोग, इवन कुछ लोग शुरू में कहते हैं I already have a very good connection with Allah Ta'ala, और मैं कहती हूँ well then do the course and then you will understand कि how much it will improve. और वो कहते हैं, एक दो ने तो मुझे कहा, इरम, I was very offended when I started this course, कि आपने कोर्स के शुरू में कहा कि अगर आपको लग रहा है, आपने लिखा है अपनी एप्लीकेशन पे, आप लोग शुरू में एक सर्वे फिल करेंगे सो दैट आई नो क्या क्या मसले हैं और कहाँ कहाँ हैं. तो उसमें एक क्वेश्चन है कि रेट योर रिलेशनशिप विद गॉड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 बीइंग आई हैव नो रिलेशनशिप विद गॉड एंड 10 बीइंग इट्स परफेक्ट, इट्स वंडरफुल. तो बहुत से लोग 8, 9, 10 जो ख़ास तौर पे इबादत गुजार लोग हैं, कुछ आलिमा और आलिमों ने भी मेरा कोर्स लिया है, तो वो 8, 9, 10 पे रेट करते हैं. तो मैं जब कहती हूँ कि अच्छा 8, 9, 10 पे जिन लोगों ने रेट किया है ना, अब आपसे मैं 4 हफ्तों के बाद पूछूंगी, फिर आप देखेंगे कि ये एक्चुअली 8, 9, 10 नहीं था, लेकिन होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा 10 पे. तो वो मुझे कहते हैं कि वी वर वेरी ऑफेंडेड कि हु इज शी टू टेल अस
ये बेपर्दा औरत हमें बताएगी कि अल्लाह से कनेक्शन कैसे करना है। खैर, मैं कोई बड़ी बात नहीं करती हूँ, मुझे सिर्फ रब से मोहब्बत करने का तरीका समझाना आता है, क्योंकि मैंने खुद बहुत देर इस चीज़ में अंधेरे में टकरे मारी हैं कि रब रब से मोहब्बत और रब की मोहब्बत को एक्सेप्ट करना, ये मुझे अब तरीका आ गया वह, क्योंकि मैंने इसमें बहुत टकरे मारी हैं। मुझे फील नहीं होता था कि रब मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है गुनाह करोगे तो अल्लाह नाराज़ होगा, अल्लाह ये, तो बंदा कंफ्यूज ही रहता है कि अच्छा मोहब्बत करता है या नाराज़ रहता है। वो एक तरफ कहता है कि मैं रहमान और रहीम हूँ, रहमान का मतलब है कि कभी ना ख़त्म होने वाली मर्सी एंड लव, रहीम का भी यही मतलब है, इंटेंस लव दैट नेवर एवर स्टॉप्स। फिर ये हमें बताया जाता है कि नहीं, वो तो नाराज़ भी हो जाता है। सो व्हेन आई टीच दिस यू विल अंडरस्टैंड कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। अभी भी बता देती हूँ आपको कि एक्शन और उनके कॉन्सिक्वेंसेस वो एक अलग चीज़ है, वो उसका सिस्टम है। रब की मोहब्बत अनकंडीशनल है और कभी नहीं रुकती, कभी भी नहीं रुकती। आप आखिरी सांस तक, इसीलिए तो तौबा के दरवाजे खोल के रखता है, वो वेट कर रहा होता है कि बंदा आ जाए, वापस आ जा तू। और वो हदीस है, मैं अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़, मफहूम आपको बताती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह से एक बदुअन का ऊंट सहरा में गुम हो जाए, आपको पता है एक बद्दू का ऊंट सहरा में गुम होने का मतलब है यकीनी और दर्दनाक मौत, प्यास से तड़प तड़प के वो इंसान धूप में मरेगा क्योंकि उसकी सवारी गुम हो गई है। तो एक बदुअन जिसका सहरा में ऊंट गुम हो जाए और अचानक जब जब उसको बिल्कुल उसकी उम्मीद टूट जाए और अचानक ऊंट वापस आ जाए, तो जो उस बद्दू को खुशी होती है उससे कहीं ज्यादा खुशी रब को होती है जब उसका भटका हुआ बंदा उसके पास वापस आ जाए। हाउ अमेजिंग! द किंग ऑफ किंग्स waits for you every day to come back to him. Digest that. So कुछ लोगों ने कहा कि जी कोर्स तो हम करना चाहते हैं लेकिन रमज़ान आ गया, एंड आई वॉज लाफिंग कि यार इससे बेहतर टाइम कोर्स करने का और क्या है। रमज़ान की ब्लेसिंग्स वाले महीने में आप ये कोर्स करें जिसमें आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं। आपको ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइजेज ऐसी सिखाई जाएंगी कि आपने शायद पहले नहीं की होंगी। आपको ऐसी शुक्राने की आदत पड़ेगी कि आपकी वो एक सेकंड नेचर बन जाएगी इंशाल्लाह। और अल्लाह के साथ एक कुर्ब का लेकिन प्यार का रिश्ता, वो कि जिसमें अल्लाह आपको अपना बेस्ट फ्रेंड लगे, तो रमज़ान में अगर वो, तो इससे बेहतर और क्या बात है, मुझे तो नहीं समझ आती। यू नो, प्लीज़ चेक आउट द स्टोरीज ऑफ पीपल हु हैव टेकन दिस कोर्स। ये लोग सब रियल लोग हैं, आप ही की तरह के। इनमें से किसी को हमने पैसे नहीं दिए कि ये बातें करें, ये इन्होंने खुद कोर्स लेने के बाद जिसने अपनी स्टोरी शेयर करना चाहिए। बहुत से लोग नहीं शेयर करते प्राइवेसी की वजह से, रिजल्ट्स उनके भी बहुत अच्छे होते हैं। ऑब्वियसली द सेलिब्रिटीज डोंट शेयर बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज, दे डोंट वांट पीपल टू नो, आई अंडरस्टैंड। बट ये जो स्टोरीज हैं, इधर लिंक, प्लीज समवन फ्रॉम माय टीम प्लीज पोस्ट द लिंक। सो इफ यू वांट टू जॉइन द कोर्स और यू वांट टू रीड दी स्टोरीज, ये सब उधर मौजूद हैं। या आप यूट्यूब पे अभी जाएं, जो मेरा चैनल है इरम सईद के नाम से। रिमेंबर टू स्पेल माय नेम राइट, इट इज ERAM नॉट UM, ERAMSAEED। उधर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है ऑफ सक्सेस स्टोरीज, यू कैन वॉच दोज। The link to the page is eramsaeed.com/30. eramsaeed.com/30. That is a pinned comment. They have pinned it so that if you want to get more information, you can go there. उसके ऊपर प्लीज जाके पूरा पेज पढ़िएगा। बहुत से लोगों को आदत है पूरा पेज नहीं पढ़ते, पूरा पेज पढ़े। नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सेक्शन है, उसमें आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो भी आंसर हो जाएंगे। You do need to understand English to be able to take this course because काफ़ी बातें मैं इंग्लिश में करती हूँ और साइंस की काफ़ी बातें I'm sorry मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकती। You do need to have a certain level of education to be able to understand what I'm saying. Majority of people that take my course, मैंने जो अब देखा एक जो ट्रेंड है, जैसा कि मैं कह रही थी, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, मास्टर लेवल people or PhDs. You know, there are a lot of people that take that kind of course in any field. मैं psychology की बात नहीं कर रही हूँ, in any field. So they seem to benefit a lot. Any questions?
send it to my other phone, please, so I can see the questions. Natasha, if you can send it to my US phone, I need to see if there are any questions I need to answer regarding the 30 days to transformation course. जैसा कि मैंने कहा है, इस दफ़ा हमने ग्रुप बहुत छोटा रखा है और we have I think 5 seats left. इस दफ़ा इंशाल्लाह we will not let it go over 30. एंड पिछली दफ़ा भी 150 लोग थे, उससे पहले भी तकरीबन 130 लोग थे और उनके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, राइट? सो दे डिड गेट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स, लेकिन इन अ स्मॉलर ग्रुप आई वांट टू सी के you know can they get even better results. So you will get access to all the recordings for 6 months. So 30 days आप मेरे साथ intense course करेंगे, आपको homework भी मिलेगा and I'm strict about homework. बहुत ज़्यादा नहीं होता. I would say अगर आप weekend पे लगाना चाहते हैं पूरे हफ्ते का course आपको 3 से 4 घंटे चाहिए होंगे per week to do the course. Okay, so आप divide करके कर सकते हैं, आधा घंटा इस तरह करके. But we are strict about homework because बातें सुन के आपका दिमाग expand होता है, जो मैं उस कोर्स में करती हूँ. लेकिन जब आप वो एक्सरसाइजेस करते हैं जो होमवर्क में आपको दी जाती हैं, तो वहाँ पे जो आप डेप्थ में अपनी उतरते हैं वो आप पहले कभी नहीं उतरे होंगे. दैट मच आई कैन प्रॉमिस यू. एंड व्हाट यू फाइंड इज गोइंग टू बी अमेजिंग, अमेजिंग. एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर यू. अगर आपकी ज़िंदगी में एंग्जाइटी है, ग्रीफ है, कंट्रोल इश्यूज़ हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, मैरिटल इश्यूज़ हैं, खुश नहीं रहना आता, लोनलीनेस है, you want to become empowered, strong, confident, any of those things you first have to clean. जो मैं कहती हूँ दलदल को पहले साफ करें, वो जो swamp है of compiled negative emotions जो आप लेके चल रहे हैं वो पहले साफ करनी होंगी. उसके बाद हम we put healthy thoughts there. Okay. So I think that all the questions are answered. Chalenji, thank you so much for spending time with me. I really wanted to address those questions. आप लोग अगर ये NLP और उस पे मज़ीद कोई आपके questions हो भेज दीजिएगा. I will try to answer those also. But again, I vehemently say this and I stand by what I said. I don't like NLP. It is rooted, or at least it is sourced out of nefarious circumstances. इसकी origins जो हैं, they are nefarious. I don't like them. मुझे जहाँ पे कहीं पे भी ज़रा सा भी खदशा होता है कि इसमें शैतानी अंसर शामिल है. और by the way, अमेरिका में, वेस्ट में जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मूवमेंट है उसमें बहुत सी शैतानी अनासर शामिल हो चुके हुए हैं. ये मेरे सामने हुआ है. बहुत बहुत ज़बरदस्त हीलिंग टेक्निक्स जिसके पीछे, और आपको रिजल्ट्स भी नज़र आते थे और बंदा कहता है ये बिल्कुल सही चीज़ है, बट वो एक्चुअली दिमाग में आपके शैतान को उतार रहे होते हैं. अगर आप जॉन ऑफ गॉड की स्टोरी अगर सुने, आई थिंक इससे ज़्यादा फेमस हीलर कोई भी नहीं था दुनिया में. प्रेसिडेंट क्लिंटन तक उसके पास गया था फॉर हीलिंग. ही वॉज इन ब्राज़ील, आई बिलीव इन साओ पाउलो, बट समवेयर, नो इन ब्राज़ील समवेयर. जॉन ऑफ गॉड वेरी फेमस. ओपरा भी गई थी बिकॉज वो लोगों के कैंसर, ट्यूमर्स, तरह तरह की बीमारियां हाथ रखता था, लोगों को शिफा हो जाती थी, हील हो जाते थे वो सब कुछ. और फिर बाद में पता चला कि ही वॉज अब्यूजिंग women and young girls sexually and had been abusing them for a very long time. तो ये जो है ना, ये छोटे मिनी दज्जाल के अनासर आपको नज़र आएंगे कि इस तरह के इन चीज़ों पे मत जाएं. जस्ट बिकॉज आपको कोई कुछ रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं और आप कह रहे हैं दिस इज़ अमेजिंग. बस अल्लाह की रस्सी को अगर थामा हुआ है तो अल्लाह इंशाल्लाह आपको गाइड कर देगा. सो अगेन फॉर दोज पीपल जिन्होंने कहा था हम स्पिरिचुअलिटी के साथ यूज़ करते हैं, प्लीज़ बी केयरफुल. अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत करे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, पाकिस्तान की मुश्किल आसान करे जो पाकिस्तान पे आई हुई है. इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुआएं कबूल करेगा. May Pakistan be prosperous and peaceful inshallah soon. And my love and gratitude to all of you guys for joining me.
And I look forward to seeing those of you that are going to be joining my course. I'm really excited. It's starting April 1st. Ab to zyada time bhi nahi hai. So alhamdulillah, I can't wait for that. Okay. Uh, so somebody, okay, I bought your course. I can't wait for it to start. It's been over 8 months. I have depression, but still, I'm hoping that will help me come out of this trauma, going through inner fight. Of course, inshallah it will. आप जाके दोबारा वो stories सुने, प्लीज़, जो playlist मैंने mention की है. आप जैसी बहुत सी ख़वातीन की ज़िंदगी, it turned around. Your relationships with your people have improved relationships with their spouses, with their children, with their in-laws, with their parents, with Allah Ta'ala especially. I'm not guaranteeing. देखें, कई दफ़ा मेरी कुछ स्टूडेंट्स ने women that came to me that I need to make a decision whether I should take a divorce or whether I should stay with this guy. And I said, please don't make any decision until you have taken this course. Because मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपने क्या करना है. आप खुद, you will have clarity and you will have strength. And you will make your own decision. But please wait till you have taken this course, because right now you don't even know what you're thinking and what you are reacting to. ये कोर्स आपकी थिंकिंग को, माइंड को ऐसे करके एक्सपैंड करेगा और आपको सिचुएशन बहुत डिफरेंट तरीके से नजर आएगी. तो किसी का क्या रिजल्ट है मुझे नहीं पता, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है. सो सम ऑफ द वुमेन actually decided to get divorced and they're happy now, they're doing great, alhamdulillah. They've moved on with strength, because जो tools वो इस कोर्स में सीखती हैं, they continue to use it. So जब जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है, डिफिकल्टी फील होती है, they use the tools, they're doing great. And we stay in touch to, kind of keep checking with them once in a while. Or kuch, some of the women decided that they were wrong, that they needed to change their own behavior, and that improved their marriage. So क्या रिजल्ट होगा ये मुझे नहीं पता, ये आप पे डिपेंड करेगा. लेकिन ये मैं बता सकती हूँ कि you will be the one making conscious decisions instead of reacting to environment. कभी आज ये रिएक्शन, कभी वो रिएक्शन, और ख़ुद पता नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्या करूँ, अम्मी अब्बू ये कह रहे हैं, माशरे वाले ये कह रहे हैं, फ्रेंड्स ये कह रहे हैं, what do I do, right? उस सिचुएशन से आप निकल आते हैं. You are able to make a clear and sound and strong decision. Okay? So thank you so much. How to call me? You can't call me, Rafia. I don't do sessions. The only way to connect with me, is through this course right now. I'm not doing sessions, I'm not doing any of that. ठीक है? Okay जी, बहुत बहुत शुक्रिया. Lots of love. जो अभी questions आ रहे हैं कि ये course किसके बारे में, please watch this live again. I defined it. तो you will be able to find out. ठीक है जी? Lots of love. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. खुदा हाफिज़.